Hey guys, welcome back. Chapter 2nd, Nutrition in Animals. You have learned that in chapter 1st that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. Animal get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animal that eat plants. Some animal eat both plants and animal. Recall the all organisms including human being require food for growth, repair and function of the body. Animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. हम लोगों ने ये देखा है कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्टली फूड अपना प्लांट्स लेते हैं, उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं. जो डायरेक्ट एनिमल खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं और जो दोनों भी खाते हैं उनको ओमनिवोरस बोलते हैं. ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ये हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रॉग्यू, वाटर, ये सारे कंपोनेंट अपन ने फूड के देखे हुए हैं. द component of food such as carbohydrate are complex substance. These complex substances cannot utilize as such, so that they broken down into simpler substance. The breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion. complex substance को simpler substance में ब्रेक करने को और उसको यूटिलाइज करने को ही डाइजेशन बोलते हैं. डिफरेंट वे ऑफ इनटेकिंग फूड. The mode of intaking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbees suck the nectar of plant. Infant of human being and many other animals feed on mother's milk. Snake like python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. हर एक ऑर्गेनिज्म में फूड इनटेक की कैपेसिटी, फूड इनटेक का मेथड अलग अलग होता है. जो ह्यूमन बीइंग की छोटे बच्चे होते हैं वो मदर का मिल्क सक करते हैं. जो पाइथन होते हैं, बड़े बड़े स्नेक, वो डायरेक्टली सॉलो करते हैं और उनको यूटिलाइज कर लेते हैं अपने फूड के तौर पर. जो हमिंग बर्ड होते हैं और बीज होते हैं वो नेक्टर को सक करते हैं. वैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड की मेथड होती है. अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. After opening the cell, the starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. देखिए ये जो स्टारफिश होता है ना, इसके माउथ से इसका स्टमक पॉप आउट करता है. और जनरली स्टारफिश ऐसे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है जो कि जिसका आउटर सरफेस होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के टफ सेल से बना होता है. उस टफ सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसे ईट करने के लिए जो स्टारफिश होता है उसका स्टमक उसके माउथ से पॉप आउट करता है और वो उसे ईट करने के बाद फिर से उसका स्टमक उसके माउथ से अंदर जाता है ना. इंटरेस्टिंग फैक्ट. डाइजेशन इन ह्यूमंस. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. द unused part of the food are defecated. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? Food passes through the continuous canals, which being at the buccal cavity and end at the anus. The canal can be divided into various compartments: the buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine ending the rectum and the anus. Is it not a very long path? This part of together form the alimentary canal. The food component gradually get digested as the food travel through the various compartments. Inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal system such as salivary gland, liver and the pancreas secrete digestive juice. The digestive juice convert complex substance of food into simpler one. The digestive tract and the associated gland together constitute the digestive system. Now let's us know that happen to the food in different part of digestive tract. देखिए जैसे अपन फूड लेते हैं
वो बक्कल कैविटी से होकर पूरा एनस से बाहर निकलता है, लेकिन इसके दौरान वो बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऐसे पूरा ट्रैवल करके हुए फूड जाता है। इसी दौरान वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो होते हैं दैट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वन, और बॉडी इसको अपने सिस्टम में सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले लेती है। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in the separate socket in the gum. Our teeth is vary in appearance and performs different function. According to they are given different name. हम लोगों के जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट अपीयरेंस में होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। इनके लिए हम लोग एंटीरियर टीथ यूज़ करते हैं जिन्हें कि इंसाइजर बोलते हैं। पर्चिंग मतलब टेयरिंग करने के लिए जो होते हैं वो कैनाइन यूज़ करते हैं, और चूइंग और ग्राइंडिंग के लिए जो होते हैं वो मोलर यूज़ करते हैं। ह्यूमन बीइंग में 2-1, 2-3 ये फार्मूला होता है परमानेंट दांत का। 2-1 मतलब 2 इंसाइजर होते हैं, 1 मतलब कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। ऐसा 2-1, 2-3 ये परमानेंट टूथ का फार्मूला होता है। 3 जो होते हैं वो मोलर होते हैं, उसके आगे जो होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं, एक कैनाइन होता है और 2 इंसाइजर होते हैं। टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set of replace them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout the life or fall off during the old age due to some dental diseases. जो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, दो सूले दांत जो होते हैं, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इंसाइजर। सेंट्रल इंसाइजर का वो मॉडिफिकेशन होता है। जो मीट ईटिंग एनिमल होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर, लायंस, उनके जो कैनाइन होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, वो बड़े बड़े जो दिखते हैं वो कैनाइंस होते हैं। और जो हर्बीवोरस होते हैं, ग्राइंडिंग करने वाले एनिमल, फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो, उनके मोलर बहुत पावरफुल होते हैं। Our mouth has a salivary gland which secretes saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. अभी हम लोग सलाइवा का यूज़ देखने वाले हैं। हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो एग्जैक्टली करते क्या है। सो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। टेक द 2 टेस्ट ट्यूब लेवल A and B. In test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 ml of water in both the test tube. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe that. Why is the change in color in the test tubes? Discuss the result with your classmate and your teacher. The saliva break down the starch into sugars. हम लोगों ने ये देख लिया है कि जो आयोडीन की टेस्ट होती है दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। पहले टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने सिर्फ राइस लिया, बॉइल्ड राइस, जिसमें कि स्टार्च था, और दूसरे में हम लोगों ने वो च्यूविंग करके ले लिया। जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सो हमने देखा कि पहला टेस्ट ट्यूब जो कि जिसमें कि बॉइल्ड राइस था दैट टर्न टू ब्लू एंड ब्लैक, मतलब ये इंडिकेशन दे दिया उसने कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन सेकंड टेस्ट ट्यूब में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो सलाइवा होती है दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। सो शुगर बनने की वजह से वो सेकंड टेस्ट ट्यूब ने रिजल्ट नहीं दिया। टंग इज द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द back of floor of the buccal cavity. It is free at the front and can move in all direction. Do you know the function of the tongue? We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with the food during the chewing and help in the swallowing food. We also taste food with the tongue. It has taste buds that detect different tastes of food. We can find out the different areas. जो हमारी टंग होती है, जो कि बेस ऑफ द ओरल कैविटी अटैच होती है, दैट इज़ अ मूवेबल होती है। टंग का फंक्शन क्या होता है? टंग हम लोगों को बात करने में काम आती है। टंग पर वेरियस टेस्ट बड होते हैं जो अब हम लोगों को वेरियस
टेस्ट का फीलिंग देते हैं। तीसरी बात, टंग जो होती है वो सलावा को फूड के साथ अच्छे से मिक्स करने के लिए हेल्पफुल होती है। फोर्थ बात, टंग सॉलोइंग के लिए भी हेल्पफुल होती है। हम लोगों के दांत जो गिरते हैं वो क्यों गिरते हैं, वो क्यों डिकेड होते हैं, इसका ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। स्वीट्स एंड द टूथ डिके, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर mouth but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. The bacteria break down the sugar that present from the leftover food and release acid. The acid gradually damage the teeth. This is called the tooth decay. हम लोग जो खाना खाते हैं वो मुंह में वैसे अगर ठीक से साफ नहीं हुआ तो जो फूड होता है उसमें का स्टार्च होता है वो सलावा के वजह से, हम लोगों ने देखा कि सलावा के वजह से स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं एसिड में, और वही एसिड हम लोगों के टीथ को ईच करता है और उसे डीमिनरलाइज करता है। डीमिनरलाइज करने से ही टूथ डिके बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट treated on time cause severe toothache and extreme case result in the tooth loss. Chocolate, sweet, soft drink and also sugar product are the major culprit of tooth decay. चॉकलेट, स्वीट और सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं उसके वजह से हम लोगों के टूथ डिकेड हो जाते हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद और ये सब कुछ खाने के बाद टीथ अच्छी तरह से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। Therefore, one should clean the teeth with brush or dantun and dental floss at least twice a day and rinse them out after every meal. Also, one should not put dirty finger or any unwashed object in the mouth. उससे क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो बैक्टीरिया मुंह में जाएंगे और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Sometimes when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or choking sensation. This happens when food particle enter the windpipe. The windpipe carry air from the nostril to the lung. It run adjacent to food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. जब हम लोग जल्दी में खाना खाते हैं तो हमको कफ होता है या चोकिंग सेंसेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फूड पार्टिकल विंड पाइप में चले जाते हैं तो कफिंग होती है। विंड पाइप और फूड पाइप जो होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट में होते और बक्कल कैविटी में जो होते उनका कॉमन पैसेज होता है। When how food is prevented from entering to the windpipe, वहाँ पर एक during the act of swallowing flap like wall close the passage of windpipe and guide the food into food pipe. ओरल कैविटी में ऐसी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप में फूड जाने को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग सॉलिंग। उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को, इस वॉल को ही हम लोग इपिग्लॉटिस बोलते हैं। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड और गेट हिकअप्स और कफ। सो इस वजह से हमें कफ होता है। कफ इज द प्रिवेंटिव सेंसेशन, मीन्स वो फूड विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है। देखिए ऐसे टंग होती है, उसमें अलग अलग टेस्ट बड होते हैं, जो अलग अलग टेस्ट बड अलग अलग पोर्शन हम लोगों को अलग अलग सेंसेशन देते हैं, अलग अलग टेस्ट का एहसास कराते हैं। फूड पाइप और इसोफेगस। The swallowed food pass into the windpipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe run along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of food pipe. उसे ही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। एक मूवमेंट की वजह से फूड इसोफेगस में आगे आगे फॉरवर्ड होता है, उसे ही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड at the time of food is not accepted by your stomach and is omit out. Recall the instance when you omitted after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. हम लोग जब खाना खाते हैं, जब फूड स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता तो वो ओमिट हो जाता है। द स्टमक इज थिक वॉल बैग। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस शेप इज लाइक फ्लैटेंड जे एंड इट इज द widest part of alimentary canal. It receives food from food pipe, that is the esophagus, at one end and open into the small intestine at the other end. The inner lining of the stomach secreted mucus, hydrochloric acid and digestive juice.
The mucus protect the inner lining of stomach. Acid kill many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. The digestive juice break down the proteins into simpler substances. जो स्टमक होता है वो ठीक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसी में से म्यूकस सीक्रेट होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक जूस सीक्रेट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है दैट रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग डाउन द पीएच को ये डाउन कर लेता है। और अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया अंदर जाते हैं स्टमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है दैट इज मेनली टेक place in the presence of hydrochloric acid. The small intestine. A small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. सबसे लेंदी पोर्शन ये स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। It receives secretion from the liver and pancreas. Beside its wall is also secrete some juices. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एक्सेप्ट करता है स्टमक से फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैंक्रियाज का और लीवर की सिक्रेशन पोर होते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन अपने वॉल से भी खुद को कुछ जूस सिक्रेट करता है जो कि फाइनली डाइजेशन के लिए काम आ जाते हैं। द लिवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in sac called the gallbladder. The bile plays an important role in digestion of fat. लीवर जो होती है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। लीवर का मेन फंक्शन डाइजेशन ऑफ फैट में होता है क्योंकि वो बाइल जूस सिक्रेट करती है। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स होते हैं और वो फैट को इमल्सिफिकेशन करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं ताकि बॉडी फैट को एब्सॉर्ब कर पाए। द पैंक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन and change them into the simpler form. देख लिया है ऑलरेडी, डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्जन करना, यही ये पैंक्रियाटिक जूस कर। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822. अ मैन नेम्ड एलेक्सी वॉज badly hit by shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and make a hole in his stomach. He was brought to the American Army Dr. Williams. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont looked it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observation. Beaumont found that the stomach was churning food. इसका मतलब वो स्टमक में क्या होता था, फूड का चर्निंग होता था, वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता वहाँ पर एसिड आके मिक्स होता था वहाँ पर। इट्स वॉल सीक्रेट अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, सही है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इन टू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड। मतलब एक पोर्शन कंप्लीट होने के बाद ही फूड आगे ट्रांसफर किया जाता है। Partially digested food now reach the lower part of small intestine where the intestinal juice completed the digestion of all component of the food. The carbohydrate get broken down into simpler sugars such as glucose, fatty acid and glycerol, protein into amino acid. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेकडाउन होता है शुगर में। कौन से? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जो शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स होते हैं, उनमें ब्रेकडाउन होता है। फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन होता है, और प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन होते हैं, और यही सिंपलर सब्सटेंस हम लोगों की बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। एब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल in the wall of intestine. This process is called absorption. The inner wall of small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi, singular villus. You can guess what the role of villus could be in the intestine. क्या करते हैं villus? ये जो simpler substance होते हैं उनको सिस्टम में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में absorb कर लेती है।
द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। सही है, विलाई जो होती है वो सरफेस एरिया, नेट सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है ताकि वो फूड को अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर पाए। ईच विलस हैज a network of thin and small blood vessel close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substances are transported via the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by our body. This is called assimilation. जो विलाई क्या होती है? विलाई एक प्रोजेक्शन होती है। In the cell, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remain undigested and unabsorbed enter into लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोगों ने देख लिया कि एब्सॉर्बेशन का पूरा प्रोसीजर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा होता है। वहाँ से विलाई से जो सिंपल कंपोनेंट होते हैं फूड के, वो किसी ऑर्गन में जाते हैं और वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, उसे ही हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और सेल में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो फूड अब इंटेस्टाइन में बचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा है, वो क्या होता है? उसे आगे प्रोपेल किया जाता है और अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो वाइडर एंड शॉर्टर होता है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के आसपास होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ऑलमोस्ट 6 मीटर के आसपास होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है इट अब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। The remaining waste passes into rectum and remain there as the semi-solid feces. The fecal material is removed through the anus from the time to time. It's called ejection. लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर और सम साल्ट ऑब्जर्व करने का काम होता है, और वाटर और साल्ट ऑब्जर्व करने के बाद उसे आगे ढकेला जाता है और वो एनस से टाइम टू टाइम बाहर निकाला जाता है। उसे अपन इजेक्शन बोलते हैं। Digestion in grass eating animal. Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grasses and store it in the part of stomach called the rumens. जो काउस बफेलो होते हैं उनको खाना मिलता है तो वो फटक से पूरा के पूरा खाना ले लेते हैं अपने पेट के अंदर और उन्हें स्टोर करते थे रूमेन के अंदर, और जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो रूमेन से फूड निकालते हैं और वो अच्छी तरह से च्यू करते हैं। हियर द फूड पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, बट लैटर कर्ड रिटर्न टू द स्टमक इन द स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यू इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड रुमिनेंट। रिच इन सेलुलस, जो ग्रास होते हैं, that is the rich in cellulose, a type of carbohydrate. Cellulose is a type of carbohydrate. In ruminant like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. Many animals, include humans, cannot digest cellulose. Animals like horses, rabbit, etc., have the large sac-like structure called the cecum between the esophagus and small intestine. Small intestine और esophagus के बीच एक स्ट्रक्चर होता है जो कि sac-like दिखता है, उसे ही सिकम बोलते हैं। द सेलुलस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। जो सिकम होता है इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलस, और ए सिकम जो होता है वो ह्यूमन बीइंग और अदर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता, इसलिए ह्यूमन बीइंग सेलुलस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। So far you have learned about animal which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and digestive system. Then how do they acquire and digest the food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. यहाँ बोला है कि हम लोगों ने अब तक देखा है कि बहुत सारे एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, तो वो कैसे जी लेते, यही हम आने वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। पहले वांट टू नो व्हाई दिस एनिमल कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट, क्योंकि जैसे वो बाहर निकलते तो उनको जल्दी से जल्दी खाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डियर हो तो उसको वो आराम से खा नहीं पाता क्योंकि उसको प्रेडेटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन जो होते हैं, है ना,
सो उसको नेचर ने उसको ऐसा बनाया है कि उसको डर लगा रहता है कि अगर वो आराम से खाते हुए बैठेगा तो शायद वो खुद शिकार हो जाएगा। तो वो जैसे ही चांस मिलता है तो अपना खाना जल्द से जल्द खा लेता है, और जब उसको टाइम मिलता है, जब उसको सिक्योर लगता है, आराम होता है, तब वो बाहर निकालते उसको च्यू करता है अच्छी तरह से। भूजो want to know why we cannot digest cellulose like the cattle do, क्योंकि हम लोगों में सिकम की अब्सेंस होता है। सिकम एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच होता है। इस फिगर में यहाँ पर एक काऊ का डायग्राम दिया है। यहाँ पर इसोफेगस है, इसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच ये सिकम है। ये पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये स्टमक का पोर्शन है। देखिए यहाँ पर र्यूमेंस है। ऐसा सिकम हम लोगों में या एनिमल्स ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं होता, सो वो सेलुलर डाइजेस्ट नहीं कर पाते। समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इट मे बी कॉज बाय द इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। कभी ऐसा होता है कि स्टूल जो होती है वो पूरी वाटरी होती है, इसे ही हम डायरिया बोलते हैं। ये क्यों होता है? ये या तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, और या प्रॉपरली इनडाइजेशन हुआ तो भी डायरिया हो सकता है। डायरिया इज अ वेरी serious condition. One should not neglect diarrhea. It is very common in India, particularly among the children. Under severe condition, it can be fatal. अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो डायरिया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। This is because of excessive loss of water and the salt from the body. Diarrhea should not be neglected. Even before the doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. This is called ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन के रेडीमेड पैकेट भी मिलते हैं मार्केट में। डायरिया फिटल क्यों होता है? क्योंकि डायरिया से जो वाटर लॉस होता है, उस वाटर लॉस की वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो बॉडी के वाइटल फंक्शन, जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, वो अपना वाइटल फंक्शन कैरी करना बंद करते हैं, और दैट इज द और दिस ब्रिंग द फिटल कंडीशन। अमीबा इज द माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन pond water. Amoeba has a cell membrane around a dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. See, this is the nucleus, pseudopods, food particle, food vacuoles. है ना? Constantly change its shape and position. This pushes out one or more finger-like projection called the pseudopodia or false feet for movement and capture of the food. अमीबा के पास एक फॉल्स फिट होते जो कि उसको मूवमेंट में और कैप्चरिंग ऑफ फूड में काम आते, उसे ही सूडोपोडिया बोलती है। देखिए यहाँ पर सूडोपोडिया की फिगर में आप देख सकते हैं। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल and engulf it. The food become trapped in food vacuoles. Digestive juices are secreted into the food vacuoles. They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually, digested food is absorbed. The absorbed substances are used for the growth, maintenance, and multiplication. The digested food residue of the food is expelled outside the vacuole. The basic procedure of digestion of the food and release of energy is the same in all organism, in all animal. In this latter chapter, you will be learn about the transport of food absorbed by the intestine to various part of the body. Generally, अमीबा में हम देखेंगे तो वो जो फूड ट्रैप करता है वो वैक्यूल में ट्रैप करता है। वहाँ पर सीक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, और वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस वो अपने बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो अपना ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन कर पाए, और बाकी का जो रेसिड्यू होता है वो उसे निकाल देता है। इन शॉर्ट, सभी ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन का एक ही फिनोमेना होता है। मेथड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मोटिव एक ही होता है। व्हाट यू हैव लर्न। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. Second, the human digestive system consists of the alimentary canal and the secretory glands.
It consists of buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine ending in the rectum, and anus. Main digestive gland which secrete the digestive juice are salivary gland, liver, pancreatic gland, stomach, wall, and the wall of the small intestine also secreting digestive juices. ये हम लोगों ने देख लिया. द मोड ऑफ फीडिंग वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. हाँ, मोड ऑफ फीडिंग जो होता है ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कुछ ऑर्गेनिज्म सक करते हैं, कुछ बाइट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म इंगल्फ करते हैं. सो मोड ऑफ फीडिंग जो होता है वो अलग अलग होता है. न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. राइट, ये हम लोगों ने अभी देख लिया पूरा. Digestion of carbohydrate like starch begins in the buccal cavity. Digestion of the protein starts in the stomach. Bile secreted from the liver, pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessel from the small intestine with the help of villi. ये हम लोगों ने देख लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है दैट स्टार्ट इटसेल्फ इन बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट का 25 to 30% डाइजेशन पूरा हो जाता है. जैसे ही पूरा वो फूड होता है वो स्टमक में आ जाता है, तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन चालू होता है. मतलब प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है. प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है स्टमक में. फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट पूरा एब्सॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस आ जाते हैं, लिवर के जूस आ जाते हैं जो कि बाइल होते हैं. बाइल जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिससे फैट बाद में कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और वो विलाई के थ्रू बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है. द absorbed substances are transported to different part of the body. Water and some salt are absorbed from the undigested food in the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन का काम ही ये होता है कि जो सॉल्ट होते थोड़े बहुत और जो वाटर होता है एक्सेसिव, वो वाटर को और सॉल्ट को बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर सके. द undigested and unabsorbed residue are expelled out of the body as a feces through the anus. The grazing animal like cow, buffaloes and deer are known as a ruminant. They quickly ingest. क्विकली क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया कि उसको अपनी जान का डर रहता है ना, तो वो फटक से खाने का कोशिश करता है ताकि जब उसको सिक्योर लगे, जब उसको शांति मिले तो आराम से वो बैठकर खा सके. Swallow their leaf food and store it in the rumens. Later the food return to the mouth and animal chew it peacefully. The amoeba ingests its food with the help of its false feet pseudopodia. The food is ingested in the food vacuoles. Later on it digested और जो एक्सेसिव मटेरियल होता है वो इवैक्यूएट कर दिया जाता है. The main step of nutrition in humans are taking nutrition, absorption, assimilation and excretion. The large gland in the human body is liver. The stomach releases hydrochloric acid and digestive juice which act on food. The inner wall of small intestine has many finger-like outgrowth called villi. Amoeba digests its food in the vacuole. वैक्यूल जो होते हैं उनमें वो फूड डाइजेस्ट करता है अमीबा. चलो ट्रू एंड फॉल्स करते हैं. डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक. स्टमक में होता है क्या? नहीं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इटसेल्फ इन ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ सलाइवा. हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है ये. द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. एग्जैक्टली, टंग हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने के लिए. द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्ड बाइल. एग्जैक्टली, जो लिवर में बन जाता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है टेम्परली, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर देता है. द रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक सॉलो ग्रास इनटू द स्टमक एंड च्यू इट फॉर सम टाइम. यस, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन. कहाँ होता है फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन में. वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब मेनली इन. वाटर कहाँ एब्सॉर्ब होता है? वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होता है. मैच द पेयर करते हैं. कार्बोहाइड्रेट
carbohydrate digested as the sugar, protein digested as the amino acid, fat digested as the fatty acid and glycerol. What are the villi? What is their location and function? villi क्या होते हैं? वो villi स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जो कि एब्सॉर्प्शन सबस्ट्रेट को इनलार्ज करने का काम करती है. उससे क्या होता है? उससे एब्सॉर्प्शन होता है, और जो सिंपलर सब्सटेंस होते हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पोर हो जाते हैं, किसी ऑर्गन में जाते हैं और वहाँ पर वो एसिमुलेट हो जाते हैं, और दैट इज द यूज फॉर द फर्दर बॉडी फंक्शनिंग. वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस? बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है. स्टोर कहाँ होता है? गैल ब्लैडर में स्टोर होता है टेम्परेरी टाइम के लिए, और वो बाद में पोर करते हैं. उसका हेल्प किस में आता है? उस बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के एब्सॉर्प्शन में काम करता है बाइल. नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन. कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? सेल्यूलोज. सेल्यूलोज ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में सिकम नहीं होता, जो कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का एक पोर्शन होता है, जो हमेशा ग्रासिंग एनिमल में पाया जाता है. एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड. एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. चिविंग ऑफ फूड, बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टमक में. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में. और फॉर्मेशन ऑफ फिशेस कहाँ बन जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में बन जाते हैं फिशेस जनरली. सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? सलाइवा सिक्रेशन होता है. स्टमक में क्या होता है? स्टमक में एसिड रिलीज हो जाता है. लिवर में क्या होता है? लिवर में बाइल जूस का सिक्रेशन हो जाता है. रिक्टम में क्या होता है? रिक्टम में फीकल मटेरियल रिलीज हो जाते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट एब्सॉर्प्शन. उसे अपन डाइजेशन इज कंप्लीटेड बोलते हैं. और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में सॉल्ट और वाटर का एब्सॉर्प्शन हो जाता है. दैट्स इट.